اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، اس ماہ مبارک ربیع الاول اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہم میں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم جلسوں میں آئین کے خلاف ہرزہ سرائی پر مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے پیپلز پارٹی کے ارکان آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کو باہر لے کر جائیں، یہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، یہ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے آج، اس کو یہ پورے سیشن میں نہیں بیٹھے گا یہاں پہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت ہوا۔ ایوان میں ہنگامہ رائی اس وقت شروع ہوئی جب وفاقی وزیر غلام سرور کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی آغا رفیع اللہ نے اسپیکر قاسم سوری سے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ اسپیکر کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر آغا رفیع نے شور شرابہ شروع کر دیا، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے آغا رفیع اللہ کو باہر نکالنے کی ہدایت کر دی۔ تاہم آغا رفیع نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ میرے قریب کوئی نہ آئے، اور اپوزیشن کی مزاحمت پر سارجنٹ ایٹ آرمز آغا رفیع اللہ کو باہر نکالنے میں ناکام رہے۔ آغا رفیع اللہ کے رویے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے ڈپٹی اسپیکر سے معافی مانگی اور کہا کہ ہاؤس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کہا یہ پہلے ایک بار باہر جائیں پھر واپس آئیں۔ تاہم اپوزیشن نے نو نو کے نعرے لگانا شروع کر دیے، جبکہ حکومتی اراکین آغا رفیع اللہ کو ایوان سے نکالنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ شیریں مزاری نے سارجنٹ ایٹ آرمز سے استفسار کیا کہ آغا رفیع اللہ کو باہر کیوں نہیں نکالتے۔ دوسری جانب وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے آغا رفیع اللہ کو 1 منٹ کے لیے لابی جانے کی تجویز دے دی اور کہا کہ رول نمبر 19 کے تحت اسپیکر کسی رکن کو ایوان کے ماحول خراب کرنے پر ایوان سے نکال سکتا ہے، کسی رکن کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ رولنگ آ چکی ہے، چیئر اور ایوان کی عزت کے لیے 1 منٹ کے لیے باہر جائیں۔ آغا رفیع اللہ کو ارکان ایوان سے باہر لے گئے، تاہم اپوزیشن اراکین آغا رفیع اللہ کو واپس لے آئے۔ مراد سعید کی جانب سے اپوزیشن جلسوں میں اپنائے گئے موقف کے خلاف مذمتی قرارداد ایوان میں پیش کی گئی۔ مراد سعید نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایوان پی ڈی ایم کے جلسے میں ہرزہ سرائی کی شدید مذمت کرتا ہے، مقدس ایوان آئین پاکستان کی توہین کی مذمت کرتا ہے۔ مراد سعید کی پیش کردہ مذمتی قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی گئی۔ ایوان میں ایم ایم اے کے رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن سے احتجاج کر رہا ہوں کہ آپ کو آج شہداء کے لیے بات کرنی چاہیے تھی۔ پشاور واقعہ افسوسناک ہے، حکومت کو سوچنا چاہیے، ان شہداء کے لیے خاص پیکج کا اعلان ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اراکین حرام کھا رہے ہیں، اپوزیشن اراکین استعفیٰ دیں، میں بھی ان کے ساتھ استعفیٰ دوں گا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواجہ آصف نے کہا عام آدمی کی زندگی مشکل ہو چکی، گندم کے حوالے سے کس لابی کو تحفظ دیا جا رہا ہے یہ وقت بتائے گا۔ انتظار کے باوجود وزیر اعظم اجلاس میں نہیں آئے، لیگی رہنما نے وزیر اعظم کو غدار کہہ دیا۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عام آدمی کی زندگی مشکل ہو چکی، گندم کے حوالے سے کس لابی کو تحفظ دیا جا رہا ہے یہ وقت بتائے گا۔ انتظار کے باوجود وزیر اعظم اجلاس میں نہیں آئے، لیگی رہنما نے وزیر اعظم کو غدار کہہ دیا۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا مقصد صرف این آر او حاصل کرنا ہے، جو لندن بیٹھے ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ہیں۔ نواز شریف باہر بیٹھ کر اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ نہ بنے۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا گستاخانہ خاکوں کا اقدام مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے کیا گیا، آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کی دل آزاری قبول نہیں۔ اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے میں ہیں، کوشش کریں گے ویٹیکن سٹی میں پوپ سے ملاقات ہو۔ وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو ہدایات دی گئی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو اور آپ کی رحمت للعالمین شان کو قوم اس پہ بات کرے اور اس کو اجاگر کیا جائے، اور جو ہمارا ایک تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے ساتھ، اس تعلق اور نسبت کو اگلی نسل تک پہنچانا اور اپنی اولاد اور پاکستانی قوم کو اس سے متعارف کرانا، یہ ان خباثتوں کا اور ان ناپاک عزائم کا ایک انتہائی مثبت اور مؤثر جواب ہوگا جو کہ فرانس اور کچھ دیگر ممالک گستاخانہ خاکوں کی شکل میں مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے کر رہے ہیں۔
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क हम मनसब से राबता किया। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तुर्क सदर के मौक़िफ़ की तारीफ की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान वजीर खारजा से राब्ते में अफगान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क और अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया। तुर्क हम मनसब से बात करते हुए उन्होंने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तुर्क सदर के ठोस मौक़िफ़ की तारीफ की। इस मौके पर तुर्क वजीर खारजा ने कहा, इस्लामोफोबिया के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान का बयान काबिल सत्ताइश है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और फ्रांसीसी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ रवैये पर दुनिया भर के मुसलमान एक हो गए। मुस्लिम दुनिया में फ्रांसीसी मसवाद के बायकॉट की मुहिम चल पड़ी। फलस्तीन, लीबिया और दीगर ममालिक मुस्लिम ममालिक सरापा एहतजाज हैं। ईरान के अखबार पर फ्रांसीसी सदर का कार्टून शाया होने पर यूरोपीय मुफक्किरीन सीखपा हो गए। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर मुस्लिम दुनिया में गम गुस्सा पाया जा रहा है। ईरान के जरीदे वातन रूस के सफ़े अव्वल पर पेरिस का इब्लीस के उन्वान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का खाका शाया किया गया है। इस खाके पर यूरोपीय मुफक्किरीन काफी सीखपा हैं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में सतह समंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने आदाब को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने शुमाली बहरा अरब में मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मिसाइल फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशन सलाहियतों और हरबी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। पाक बहरिया किसी भी किस्म की जाहिलियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पेशावर दीर कॉलोनी के मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। मदरसे के एक तालिबे इल्म को हिरासत में लिया गया। मुतासरा मदरसे में तदरीसी अमल एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसके तहत धमाके से कबल दहशतगर्दों ने मदरसे और दरसो तदरीस के लिए आने वाले तलबा की रैकी की। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायफ का डेटा हासिल कर लिया गया है, जबकि मदरसे में जेर तालीम एक तालिब इल्म को भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा यानी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए। सिक्योरिटी हुकाम मदरसे के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुतासरा मदरसे में तदरीस का अमल एक हफ्ते के लिए मुअत्तल करके बच्चों को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। धमाके के 6 जख्मी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान को अफगान अमन अमल की हिमायत की सजा दी जा रही है। इस्लाम और वतन दुश्मन नाकाम और नामुराद होंगे। पेशावर धमाके में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। फ्रांस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत लिख दिया। कामरान चौधरी से तफसीलात जानेंगे। कामरान चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, अफनान गुस्ताखाना खाकों का मामला है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो फेसबुक के बानी के बाद जो है वो आलमी सतह पर तमाम लीडरान के नाम एक खत लिखा गया है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भी और बशमूल उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। और इसमें कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो बहसीयत मुसलमान और हमारे ईमान का हिस्सा है। हम किसी सूरत भी जो है वो उम्मत मुस्लिमा जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आलमी बरादरी को फौरी तौर पर इस पे इक़दाम उठाने होंगे और ऐसी गुस्ताखाना हरकतों पे और जिन मुमालिक में ये गुस्ताखाना हरकतें की जा रही है उनको फौरी तौर पर जो है वो बंद करवाना होगा। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। मुल्क में कोरोना के बार बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जाँ बाक हो गए। एक्टिव केसेस की तादाद 11,627 हो गई। एनसीओसी ने मुल्क भर के तमाम शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा कि शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी पहने। इज्तिमात हो या पब्लिक मकामात, मास्क का इस्तेमाल लाजिम तौर पर किया जाए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ और बताया गया मुल्क के 11 शहरों में ये वबा तेजी से फैल रही है। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना केस सामने आने का भी जायजा लिया गया।
खबरें होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर पहली छमाही में 4 अरब 15 करोड़ डॉलर बढ़ गए। तरसीलात ज़र में 31% इजाफा हो गया। अक्टूबर में महंगाई की शरह 7.39% बढ़ी है। वज़ारत खजाना ने मुल्क की सूरत हाल पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी 22 सितंबर को काबीना ने दी थी। सखर में नान बाई रोटी बंद कर गए। ऑल सखर होटल शीरमाल एसोसिएशन की जानिब से रोटी के निर्ख मुकर्रर करने पर आज से हड़ताल कर दी गई। ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे औरंगजेब से। औरंगजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑल होटल शीरमाल एसोसिएशन की जानिब से आज नान भाइयों की हड़ताल जो है शुरू हो चुकी है। मैं ये बताता चलूं कि रोटी के जो नर्क हैं वो कम करने के लिए इनको कहा गया था, जिसकी वजह से इन्होंने हड़ताल जो है शुरू की है। हमारे साथ एसोसिएशन शीरमाल एसोसिएशन के सदर जो है इस वक्त मौजूद है, हम उनसे पता करते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे डीसी साहब ने 14 तारीख को हमें निर्ख दिए थे 15 रुपये नान के। कल एडीसी साहब ने बुला के जबरी जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा नान 12 रुपये का बेचें। न उसकी वजूहात बताई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कोई चीज़ रिवाइज हुई है? यहाँ आटा, गंदम, चीनी माफिया को पकड़ने के बजाय फिर उन्होंने मैदे के रेट को ओपन छोड़ दिया है। मैदे के रेट पे कहने लगे मुझसे बात ना करें। जब मैदे का कोई रेट नहीं होगा तो रोटी का रेट किस तरह होगा? लिहाजा ये हमारे तकरीबन सभी लोगों ने हमने हड़ताल की है और आज हम हड़ताल पे गए। कल हम इंशाल्लाह एहतजाज पे जाएंगे, परसों हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। जी जैसा कि आपने सदर की बात सुनी कि उनके कहने का मकसद यही था। एडीसी साहब की जानिब से हमें बुला के कहा गया है कि रोटी 15 रुपये से 12 रुपये कर दी जाए, जिसके लिए ये जो है ना मुनासिब बात है और हर चीज़ महंगी हुई है। जो चीज़ रोटी के नानों में इस्तेमाल होती है वो कम नहीं हुई। चीनी हो गई, आटा हो गया, मैदा हो गया, लकड़ी हो गई, गैस हो गया, ये सब के जो रेट हैं वो तो आसमान से हैं। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि रोटी के नर्क कम करें, जो नामुमकिन है। आज हमने हड़ताल की है और कल हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। शुक्रिया औरंगजेब। काबिज भारत ने मकबूजा कश्मीर को बराए फरोख्त रख दिया। भारत के जेर कब्जा कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत दे दी गई। काबिज हुक्काम ने जमीनों की खरीदारी से मुतालिक ऐलान कर दिया। जायदाद से मुतालिक कवानीन में तरमीम कर दी गई। भारत के शहरी कश्मीर में गैर ज़रई जमीन खरीदने का अहल करार दे दिया गया। हुकूमत ज़रई जमीनों को मफाद आमा के लिए इस्तेमाल कर सकती है, नया ऐलान किया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर आज भी न थम सका। सर्च ऑपरेशन की आड़ में निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। जिला बुडगाम में काबिज फौजियों ने मजीद 2 जवानों से जीने का हक भी छीन लिया। गुजरे जो शाम साए कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। ए प्यारे खुदा देखूं मैं सरकार का जलवा, सरकार का जलवा। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार क़यामत मरहबा, दिलदार क़यामत मरहबा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच।